वहां पर कि मोरबी का पुल मोदी के दोस्त ने ठेके पे लिया था। 31 लाख के स्टैम्प पेपर का घोटाला वहां हुआ था, जो केवल 300 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लिखवा करके वो जो ब्रिज था वो दे दिया गया। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा। आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए जिनको खरीदने की आदत लग जाए और बेचने की आदत लग जाए, वो खरीदने बेचने पर यकीन रखते हैं, चाहे वो सांसद हो, चाहे देश का लोकतंत्र हो, चाहे देश के जज हो। जी हां, यही उम्मीद की जा सकती है ऐसे नेताओं से जो आज नेता हमारे सेंटर में बैठे हुए हैं। आज उनसे सवाल करना बेईमानी होगा, आज उनके बारे में भी सवाल पूछना बेईमानी होगा, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर खुलासा होता है और मीडिया पे वो खबरें गायब हो जाती हैं। आप सोच रहे होंगे कौन सी खबरें गायब हो गई, किस खबर के बारे में ना बताया गया, किस खबर का जिक्र इस मीडिया ने ना किया। ऐसा मीडिया कब से नालायक हो गया, बेवकूफ हो गया, जिसने हिंदुस्तान की 135 करोड़ जनता को सच ना बताया। कौन से देवता की पोल खुल जाने का डर था, कौन सा वो गृह मंत्री था जिसकी पोल खुल जाने का डर था, लेकिन सच नहीं बताया। सच बताया केसीआर ने तेलंगाना के। As I told you, we all are ready. Everything is been discussed. So now if you can discuss everything openly, even they'll get that confidence. Actually, when you have discussed the matter very clearly. Because see, me discussing is different, you discussing is different. Same. Sir, committedly that we need to get some delivery from here, then we'll shift into Delhi. That is what we discussed, right? The same we discussed earlier. They have sent a message. They are here already. So I'm waiting for the message. Discuss the figure also openly. Yeah. No, there is 50 each. Yeah. 50 each. 50. 50 crores. 50 lakhs is going to hand over. I think discuss. He sent a message. If he sent a message You to. want to deliver here, right? We have, you know very well, 5 other people also. I told him. Right now the yadda. Next. మీకు ఎక్కడ డెలివరీ కావాలో అక్కడ ఇచ్చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు ఓలా हेलो तुषार जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? Nataji also, and better we'll do one because tomorrow onwards, if you're ready to come, tomorrow onwards any day we'll take it. I'll send to I'll call Santoshi and ask for the earliest possible date. Okay. Okay. Because are you free from tomorrow? Well, actually, it is nothing free because we all are in Mungodu elections, Tusharji, Mungodu by-elections. But I think that election is on 3rd, right? yes, 3rd. If 3rd means 4th and 5th if you are free, because I can take the date on 4th or 5th. Okay. Is that which is the better for you? No, we want to finish it off today or tomorrow because again, as Swamiji told, today itself we'll finish everything. So that's the reason I called all the 3 of my colleagues from Mungodu. Since yesterday they are here only. They didn't go to their duties. We have to meet Santoshi, then I have to call him. Yeah. Because I didn't have any confirmation, that's why I didn't call him. Okay. Because I'll do one thing, I'll fix an appointment tomorrow day after, Okay. as early as possible. Okay. And before that we will meet. Okay. Ask him where we can meet him. Okay. And we can go and meet him tomorrow day after. So can we do this thing, Tusharji? If you can also come down to Hyderabad by today. Rohit is ready, so then with him he is having another 2 MLAs. They are ready with him.
So total 3 members. Yeah, maybe it will be increased later. Right now, Later it may be increased. So Santosh immediately the conference call with Amit Shah, sure. and he asked with that, and Amit Shah said that, see, if 1 or 3 means it is not good to go there. Not good means if 5 or 6 are more there, then we can plan to. See, Santosh is a very big person. He is not like he is not a small person. Okay. So even the minister goes also, the minister has to take the appointment with the Santosh. Then only Santosh will allow. Okay. That is the protocol of him. So calling him and asking him to come there, when he says, see, when bulk is there, then I can plan for that. If bulk is not there, then tell you something. These 3 or 4 is there, and if you want ex-MLC, ex-MLA, I can arrange 4, 5, 6. So totally 10 I'll give. sitting for Yeah. Sitting for, see, sitting for, if I am saying 4 means we need the name. We are not. देखिए, आपको ये एक चीज आपको पता होना चाहिए कि हम किसके सामने बैठ के बात कर रहे हैं। समझिए सर, ठीक है? देखिए सुनिए, वहां पे बैठने के समय में हमको छोटा छोटा चीजों के लिए नहीं बैठते हैं। वो तो बैठ गए तो बैठ गए, बस कमिट हो गए तो कमिट हो गया, क्योंकि जो कमिटमेंट करना है उन्हीं के हाथ में है, ना बंडी संजय है ना किसी और के साथ में है या किशन रेड्डी के पास में। वहां पे सिर्फ और सिर्फ वो भी चीज सिर्फ नहीं और मालूम होना सिर्फ स्वामी जी प्लीज। हैं? एंड बाय सजेशन इज, हाँ इधर वो चीज नहीं मालूम हुआ जो अपन दिल्ली में कर रहे हैं। हाँ, वही कह रहे हैं ना। देखिए, स्टेट में अगर पता होता है तो स्टेट में और तरीके से वो करते हैं, तो इसीलिए हम स्टेट को बाईपास करके डायरेक्टली सेंटर ही हैंडल। దేశం యొక్క న్యాయ వ్యవస్థతోని దండం పెట్టి this kind of open purchasing of MLAs, dethroning governments, they openly say in this video, we have already dethroned 8 governments and how we conducted the operations. Now we are in the process of dethroning 4 governments, that is Telangana, Delhi, Andhra and Rajasthan. They say the number of MLAs managed also. Which state, how many MLAs are managed? Or people are already operating, they are there. They say everything so shamelessly. So this is not an easy task. So this needs to be looked into with great concern. ప్రజాస్వామ్యవాదులందరూ కూడా దయచేసి ఇది తీవ్రమైన విషయంగా పరిగణించి, నేను ఇంకొక విషయం మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నా. వాళ్ళు 2-3 ఎమ్మెల్యేలు లేని కాడ, ఒక ఎమ్మెల్యే లేని కాడ మేము వాడు ఏకనాథ్ సిండేలం పెడతాం. ఇది ఎక్కడ రాజకీయం అండి? నాకు అర్థం కాదు. माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं अनुरोध करता हूं, जो कि मैं आपका राजनीतिक सहयोगी हूं, आई एम योर पॉलिटिकल कोलीग, आपने प्रधानमंत्री बना, मैंने उसी साल में मैंने भी चीफ मिनिस्टर बना। 8 साल से मैं आपके साथ मिलकर काम कर रहा हूं इस देश में। आई एम ऑल्सो होल्डिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। मैं इससे पहले भी आपको सुझाव दिया था मोदी जी, आज भी देता हूं, ये कांड को रोकिए, इस प्रहार को समाप्त कीजिए, लोकतंत्र का मान्यता को मानिए। ये प्रहार ठीक नहीं है, ये आपको श्रेय नहीं देगा, हिंदुस्तान के इतिहास में आपका स्थान खराब होगा। बिल्कुल ये सच बात मैं कह रहा हूं। आप 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, चाहते क्या है और क्या चाहते हैं? कुछ अच्छे काम कीजिए, अच्छा नाम कमाइए, इतिहास में अच्छा जगह बनाइए। ये क्या हो रहा है? आप खुद कदम उठाइए, इस कांड में जो भी जिम्मेदार है सारे लोगों को गिरफ्तार करवाइए, जांच पड़ताल करवाइए,
मैं अनुरोध करता हूं, इस प्रकार से लोकतंत्र का हत्या करते हुए, राज्यों के सरकारों को गिराते हुए, सब लोगों को एक खौफ में, डर में रखते हुए क्या क्या कमाना चाह रहे हैं आप, क्या पाना चाह रहे हैं? भगवान ने आपकी किस्मत में बहुत बड़ा जगह दिया आपको। आप दो बार इस देश के, इतने महान देश के प्रधानमंत्री बने। ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। देश के हित में भी, आपके हित में भी, किसी के हित में भी ये ठीक नहीं है। मैं बड़ा दुख से कह रहा हूं यह बात। कोई भी इंसान 1000 साल के लिए जीने के लिए नहीं आता। हम कितने भी शक्तिमान हो, 100 साल के आगे नहीं जी सकते। क्यों इतना बुरा काम हमको करना चाहिए? क्या कारण है? इस पे एकदम रोक लगना चाहिए। दिन दहाड़े खुलेआम प्रहार कर रहे हैं आपके नाम लेके, आपके गृह मंत्री का नाम लेके। कहां तक ये सही हो सकता है? इसको लगाम लगाइए, रोकिए इसको। देश के पूरे युवाओं से, देश के छात्रों से, देश के बुद्धिजीवियों से, जो लोकतांत्रिक प्रेमी है, एक बार याद कीजिए उस महान पुरुष को, जयप्रकाश नारायण को। आज फिर समय आया है। आजादी का जंग जब गांधी जी लड़ रहे थे तो वो बैरिटले थे, बहुत धनवान थे। वो भी ऐश कर सकते थे अपने जिंदगी को। जवाहरलाल नेहरू भी ऐश कर सकते थे, इतने धनवान आदमी थे। भगत सिंह जी शहीद हुए इस देश की आजादी पाने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल कई कुर्बानियां दी। हमारा देश का परंपरा है, संस्कृति है, इतनी गरिमा है भारत का, पूरी दुनिया भर में, विश्व भर में एक जगह है, एक मान्यता है हमारे देश का। और भारत दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया के मुंह पे आप डब्बा मत लगाइए प्लीज, फॉर गॉड्स सेक। आई प्रे विथ फोल्डेड हैंड्स। रोकिए इसको। एक निष्पाक्षिक काम कीजिए। जो गलत है उनको गलत बोलिए। ये काम नहीं है, ठीक नहीं है, सॉरी। हमारे स्वतंत्र सेनानी, हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने क्या यही चाहा था? जब आजादी की जंग लड़ रहे थे, कुर्बानियां देते हुए, सूली पे चढ़ते हुए, चलिए ऐसे कांड को देखते हुए अगर खामोश रह जाए, वो भी पाप होगा, आगे के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए हर किसी से, हर बुद्धिजीवी से मैं प्रार्थना करता हूं कि प्लीज राइज अबव ऑल एंड सेव डेमोक्रेसी। राइज अबव ऑल, सेव डेमोक्रेसी। लोकतंत्र बचे रहे तो आगे हमारा विकास हो सकता है, हमारी स्थिति बदल सकती है। टीआरएस पार्टी ही था। जब इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग ने सिंबल देने के लिए इनकार किया था, मैंने न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया, वहां से मुझे न्याय मिला। मुझे ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में जितने पार्टियां हैं उन लोगों को कॉमन सिंबल दिया जा रहा है। ऐसा न्यायपालिका का गरिमा है। इसमें हम बिल्कुल लड़ पड़ेंगे, जहां तक जाना पड़े जाएंगे। हाँ ठीक है, कुछ लोगों को जान देने की अगर नौबत आई तो दे देंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन चुप्पी नहीं साधेंगे। टुडे जिन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेसबूतों के साथ कुछ वीडियो रिलीज किए जिसमें खरीदारी की बात चल रही है सारे स्टेट्स के विधायकों की, सत्ता को चेंज करने की। यह वो षड्यंत्र है जो लोकतंत्र को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और फिर ताना मारते हैं केसीआर, प्रधानमंत्री को सीधे बोलते, प्रधानमंत्री जी अगर ये हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है, जरा सुधारिए इस चीज को। क्या इस बड़े मसले पर क्या
सुधीर को ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करना चाहिए था। अंजुराम कश्यप को व्हाइट एंड ब्लैक तो क्या करती हैं, हल्ला बोल नहीं करना चाहिए था। आज हल्ला बोल कर रही थी वो पीएसआई और एयर पॉल्यूशन पर और दुनिया भर पर, जिसमें नाटकबाजी हमारे अरविंद केजरीवाल करता रहता है। अरविंद केजरीवाल को नेता ही नहीं मानता, उसको तो मोदी जी का डबल रोल मानता हूं, छोटा टिकट मानता हूं। उसको नेताओं की पदवी देना ही मतलब बिल्कुल गलत है। लेकिन केसीआर एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने तेलंगाना के बारे में, बहुत पुराने सीनियर नेता हैं जो करते रहे। लेकिन जब केसीआर ने खुलासे किए तो खुलासे ऐसे हो गए जिसमें अगर मीडिया दिखा देता ये खुलासा तो प्रधानमंत्री मोदी की पूरी धोती और लंगोट उतर करके नीचे आ जाता। लेकिन खुलासा मीडिया ने नहीं चलाया, सोशल मीडिया पर चला और उसके बाद उसको दबा दिया गया। क्या थी वो रिपोर्ट? 17 मिनट के कौन से वो वीडियो थे? कौन सी वो बात थी जो केसीआर ने बोली? सुनिएगा। केसीआर ने बहुत अच्छी तरह से संघ की उतारी है। नमस्कार। ये देख लिए होंगे आपने सारे सबूत, और इसके बाद अब आप बताइएगा कि केसीआर झूठे हैं या ये रंगबाज सरकारों को खरीद करके सरकार बनाने वाले रंगबाज तड़ीपार ज्यादा शातिर हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।